Okay, so welcome to SWC Makkar. Let's about my intro. So my name is Ashish Madhukar. I have total 7 years Salesforce certifications and JavaScript and Sales Cloud, everything related to Salesforce only. And I have also one certified Copilot Fundamental one. Everyone can connect with me on LinkedIn as Ashish Madhukar, Twitter also Madhukar_Ashish, and you can also subscribe our channel SFDC Madhukar. So today our topic is about the LWC decorator. Okay. So basically what is the decorator and what are the use of all the decorator in LWC. So when you are learning LWC, so decorator are very important in LWC. Okay. So how we can learn, how we can know about the LWC decorator. So let's discuss. So one of the key feature of LWC, it is used decorators, which are the specially keyword that can be used to modify a class or its properties basically. Okay. So in this session, we will learn how we can check all the three decorator smoothly. Okay. Use decorator LWC. So there are total three decorator in LWC, API, wire, and thread. Okay, so let's go on the API. So this is the API to okay. So what is the API basically decorator and what are the use in the LWC? So the API decorator is used to expose a public property or method on LWC component. This allow other component to access and interact with the decorator property or method. Okay, so let me tell you about more about API. Okay, so for example, you have created two or three component. Okay, and you have called your API your child component in parent component. Okay, and now you want to pass data from parent to child. So how you can pass your data from parent to child? And another example, if you can, so uh, you have created one method in child component, and now you want to call that method child method in parent component. So how you can call that method and how you can make your method as a publicly mean publicly means not you can call anywhere. You can call from parent on that related component only. Okay, तो API बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम LWC में. अगर आप एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं तो हम फॉर एग्जाम्पल कि हमें कोई हम अपना कंपोनेंट डायनेमिक बनाएं और हमें इस डायनेमिक कंपोनेंट में हमें किसी अदर ऑब्जेक्ट का नेम लेना है या रिकॉर्ड आईडी लेना है किसी थर्ड कंपोनेंट से. तो आप विदाउट एपीआई वेरिएबल के थ्रू नहीं ले सकते, या आप अपना कोई चाइल्ड मेथड एक्सपोज करना चाहते हो पेरेंट मेथड के लिए, तो उसके लिए भी आपको एपीआई की ही नीड होता है बेसिकली. तो आप कैसे कॉल करोगे एपीआई को, तो हम उसको आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताएंगे. फॉर एग्जांपल कि आपको आपने एक हेलो वर्ड कोई कंपोनेंट बनाया है और आपने कोई चाइल्ड कंपोनेंट बनाया है और आप उसको एक्सपोज करना चाहते हो अदर उस मैसेज को अपने पेरेंट कंपोनेंट पे. तो हम प्रैक्टिकल भी करते हुए चलेंगे. ओके, तो इफ एनी क्वेश्चन और एनी यू नो एनी डाउट्स, सो आप पूछ सकते हो बीच में भी, आप रोक के. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ प्रैक्टिकल आल्सो. ओके, तो अब हम अपने यहाँ पे एलडब्ल्यूसी इसमें आ गए हैं बीएस कोड में. तो प्रीवियसली हमने आपको बताया भी था कि आपको कैसे
कंपोनेंट में आपको VS कोड कैसे सेटअप करने हैं आपको बेसिकली, एंड आपको कैसे अपना फर्स्ट कंपोनेंट बनाना है, मतलब LWC का कंपोनेंट आपको कैसे बनाना है। इसके मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दिया था, अगर आपने देखा होगा तो आप ऑलरेडी अपना VS कोड सेटअप कर चुके होंगे और अपना एक फर्स्ट कंपोनेंट आप बना चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आवर पॉइंट है कि हमें अब डेकोरेटर को यूज कैसे करना है LWC में बेसिकली। सो देन वी कैन यूज आवर decorator in LWC. Okay. So for example, this is my component. Okay. For example, LWC component. ये मेरा एक component है. Okay. और मैं एक और component बनाना चाहता हूँ basically. Okay. Okay. So let's create one another component for then we can use in our component. Okay. So हमारे component का नाम है child component. ठीक है. So child component. So ये हमारा child component है बेसिकली, और इस चाइल्ड कंपोनेंट को हम कॉल करेंगे अपने पेरेंट कंपोनेंट में बेसिकली। ओके, सो दिस इज आवर चाइल्ड कंपोनेंट, एंड सो हाउ यू कैन यूज योर डेकोरेटर बेसिकली। ओके, सो हियर वी हैव ऑप्शन। ओके, इन लाइटनिंग कंपोनेंट बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख रहे होगा कि इंपोर्ट लाइटनिंग एलिमेंट, राइट। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट सारे डेकोरेटर करना, मतलब जरूरी है कि आप सारे करो, जो आपको यूज करना है लाइव प्रोजेक्ट में या फिर आपको टेस्टिंग के लिए, तो आपको सारे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है बेसिकली। ओके, तो अभी हमें सभी को एक एक डिस्कस लेके करना है, तो हम अभी सभी को एक एक करके आ, यहाँ पे इंपोर्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें एपीआई का यूज करना है, तो हमने यहाँ पे अपने एपीआई डेकोरेटर को एक्सपोज कर लिया। ओके, तो अब आपको कोई वेरिएबल या कोई मेथड कैसे बनानी है, तो अभी हम वेरिएबल बनाते हैं फिर। ओके, एपीआई आप दे दो, आप यहाँ पे दे दो मैसेज बेसिकली। ओके, और आप चाहते हैं यहाँ पे इसको मैसेज कुछ देना कि हेलो आई एम ए चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, सो फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन दिस बेसिकली। ओके, तो आप देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई आपका एरर नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सेव करो। डिप्लॉय करने के लिए मैंने बता ही दिया था कि आपको क्या करना है, कंपोनेंट पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से डिप्लॉय सोर्स टू ऑल, क्योंकि आप कोई भी कंपोनेंट डिप्लॉय के बिना आप यूज नहीं कर सकते, राइट। तो मेरा कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है। आफ्टर डिप्लॉय द कंपोनेंट, लेट्स यूज आवर कंपोनेंट इन parent component. So this is, I'm considering this is my parent component. Okay, so let's call, how we can call our child component, any child component parent. Okay, तो यहाँ पे एक कवर और हो जाएगा कि how we can call child component in parent. Okay, तो यहाँ पे हम उसका यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो let's create one p tag. Okay, one p tag, then close p tag. Let's given the hidden child component. Okay, then let's call your child component here. So how we can call our child component? First c, then hyphen। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब भी आप कोई भी कंपोनेंट बनाओगे हमेशा स्मॉल में ही रखोगे, अगर आप कैपिटल में स्टार्ट कर देते हो तो वहां पे इशू आता है, मतलब आपका कंपोनेंट डुप्लीकेट ऐसे करके इशू जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि कभी भी कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करो हमेशा उसका नाम चाइल्ड में ही रखो। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरा कंपोनेंट का नाम क्या है,
चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, तो आप यहाँ पे चाइल्ड। ओके, अब कंपोनेंट यहाँ पे आपका स्टार्ट कैपिटल से है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि कंपोनेंट। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख दोगे तो वो गलत है, मतलब ये लेगा ही नहीं, वो एरर है आपका। ठीक है, वो कंपोनेंट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आप जो कंपोनेंट है उसका नाम आपको लिखना है, बट अगर कोई भी आपके कंपोनेंट में के नेम में इफ स्टार्टिंग लाइक फ्रॉम कैपिटल, ओके, तो आपको क्या करना है, जस्ट पुट हाइफन। ओके, देन जो भी आपका कैपिटल लेटर है वो आपका यहाँ पे स्मॉल में हो जाएगा। इट मीन्स कंपोनेंट, और यहाँ पे आप क्लोज कर दो अपने कंपोनेंट। एवरीवन अंडरस्टैंड? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज आस्क मी। नो? ओके देन। तो अब हमारा कंपोनेंट यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट हमने यहाँ पे आपको कर दिया। अब आपको इसको भी डिप्लॉय कर देना है बेसिकली। आप इस कंपोनेंट को भी डिप्लॉय कर दोगे। तो अब यहाँ पे आपका कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है। अब चलते हैं हम सेल्स फोर्स में। यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं। हमने बता भी दिया था कि आपको कैसे ऑथराइज करना होता है अपने सेल्स फोर्स और को VS कोड से। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं और अपना VS कोड सेटअप भी कर सकते हैं और अपने सेल्स फोर्स और को बेसिकली यहाँ पे ऑथराइज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अपना कंपोनेंट होम पेज पे डाला था यहाँ पे। बेसिकली लेट्स क्लिक ऑन द होम पेज। ओके, तो हमें यहाँ पे ऐसे, अब आप देख लो हेडिंग हमारा आ रहा है चाइल्ड कंपोनेंट, बट हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे आप एक बटन बना लो कोई भी करके। लेट्स क्रिएट लाइटिंग हाइफन बटन। ठीक है, आप एक बटन बना लो। यहाँ पे आप वेरिएंट दे सकते हो अपना, वेरिएंट लाइक ब्रांड। तो ये सब हमें कैसे मालूम चला, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कंपोनेंट लाइब्रेरी से जाके आपको वहां से सारे टैग्स देख लेने हैं कि कैसे कैसे का इसका क्या यूज्ड है बेसिकली। ओके, तो आप कोशिश करो कि सारे टैग मतलब लर्न कर लो और उसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जब तक आप टैग नहीं जानोगे तो यूज नहीं कर पाओगे। राइट, तो यहाँ पे उसका मेथड होता है ऑन क्लिक। हमने यहाँ पे ऑन क्लिक पे एक अपना, तो यहाँ पे अब LWC में जो मेथड होता है वहां पे कॉल करने का तरीका यही होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसे ही कॉल करना है, हैंडल। आप मेथड का नाम जो इसके बीच में, मतलब आपको इवेंट का नाम देना है इक्वल, देन कर्ली ब्रेसेस, देन योर मेथड नेम। मेथड नेम आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको मेथड नेम बेसिकली क्रिएट करोगे आप। ओके, तो अब आप मेथड का नेम कॉपी कर लो, क्योंकि आप जो यहाँ पे मेथड का नाम दोगे वही सेम आपको मेथड नेम वहां पे भी देना है। ओके, तो अब आप चाइल्ड, आप अपने यहाँ पे आ जाओ JS में। यहाँ पे आप यहाँ पे मेथड का नाम दे दो। मेथड आपको ऐसे बनाना है, तो आप दो तरीके से मेथड बना सकते हो। एक एरो मेथड होता है और एक ऐसे नॉर्मली क्रिएट करते हैं, तो आप एरो मेथड भी यूज कर सकते हो। तो एरो मेथड कैसे यूज करेंगे हम आपको वो भी बता देंगे, ठीक है उसमें, बट अभी हम ऐसे यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कि चाइल्ड मैसेज कर कर। बाय डिफॉल्ट मैं इसको ब्लैंक दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मुझे आप अपना मेथड का नाम कॉपी कर, तो अब इसको, अब LWC में कोई भी वेरिएबल आपको कॉल करना होता है, अगर वो वेरिएबल आपका अपने टॉप पे यहाँ पे बनाया, अगर वो लोकल वेरिएबल नहीं है तो आप उसको दिस के कीवर्ड से ही यूज करोगे।
ठीक है। तो दिस, देन वेरिएबल नेम। अब आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आपके चाइल्ड कंपोनेंट के वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करना है। तो चाइल्ड कंपोनेंट के वेरिएबल को आपको कैसे एक्सेस करना है, आपको लिखना है दिस डॉट टेम्पलेट, ओके, देन क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। आफ्टर दैट सिंगल कोट्स में जो ये आपका कंपोनेंट का नेम है वही देना होता है। या आप क्या कर सकते हो, जो आपने यहाँ पे कंपोनेंट ऐसे कॉल किया है सेम इसी को कॉपी कर लीजिए, ओके, कॉपी दिस नेम एंड गो टू योर जेएस here and paste here, ओके। तो आप एक तो ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्टली यहीं पे डॉट लगा के आपका चाइल्ड पर कंपोनेंट कहाँ पे, यहाँ पे, आप डायरेक्टली अपने कंपोनेंट उस वेरिएबल को यहाँ पे देके यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे तो हो गया, लेकिन ये मैसेज दिखेगा कैसे, तो अब यहाँ पे आओगे बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई पी टैग या डी भी लगा सकते हो, जो अभी आपको यूज करना है। और यहाँ पे आप दे दो कि मैसेज फ्रॉम चाइल्ड, ओके। अब आपका मैसेज जो चाइल्ड से आया है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब किसी भी वेरिएबल के आउटपुट को दिखाने के लिए हम ऐसे, मतलब जहाँ आपको पी टैग में लिखना है या किसी बेसिकली इनपुट टैग में देना है या डीप टैग यूज करना है, स्पैन कोई भी टैग यूज करना है, बस टैग के बीच में आपको कर्ली ब्रेसेस देना है। कर्ली ब्रेसेस के बाद जो आपने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है, मतलब इस कंपोनेंट में जो वेरिएबल बनाया है बेसिकली, आपको वो यूज करना है, ठीक है। देन कॉपी दिस वेरिएबल नेम एंड गो टू हियर, ठीक है, पेस्ट कर दो आप। अब क्या करना है, आपको डिप्लॉय करना है इसको बेसिकली। तो आपका कंपोनेंट डिप्लॉय हो गया, राइट। अब क्या करना है, आपको चेक करना है यहाँ। अब आपको इसको रिफ्रेश करना है अपने कंपोनेंट को। तो आप देखो यहाँ पे आपको मैसेज दिख रहा है, ओके। बट यहाँ पे बटन, हाँ बटन आपका देखिए क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने कोई लेबल नहीं दिया है यहाँ पे, ओके। ब्रांड दिया लेकिन हमने कोई लेबल नहीं दिया, तो हम चलते हैं एक लेबल दे देते हैं, ओके। तो हम दे देते हैं यहाँ पे लेबल कॉल चाइल्ड, ओके। इसको आप डिप्लॉय कर दीजिए यहाँ से, ओके। तो हमारा कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है बेसिकली। अब आते हैं इसको दोबारा से रिप्लेस करते हैं। तो आप डिजाइनिंग के तौर पर अगर बात करो तो आप डिजाइन अपने अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। हमने ऐसे पैटर्न बना दिया, आप इसको सेंटर में ला सकते हो, इसका कुछ और कलर दे सकते हो। तो आपको इसको कुछ सीएसएस दे सकते हो, इसको थोड़ा करो बना सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप कैसे भी दे सकते हो, ठीक है। लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन, चेक हियर, हेलो आई एम ए चाइल्ड कंपोनेंट। सो आपका चाइल्ड, अब हमने मैसेज कहाँ पे लिखा है बेसिकली, चाइल्ड कंपोनेंट पे। चाइल्ड कंपोनेंट कहाँ पे हमारा, ये वाला, दिस वन, राइट। बट हम किस कंपोनेंट पे कॉल कर रहे हैं, पेरेंट कंपोनेंट पे, राइट। आप यहाँ पे मैसेज चेक कर दो, चेंज कर दो कुछ यहाँ पे, कुछ ऑल द पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट कॉल्ड फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। और इसको करके आप डिप्लॉय कर दीजिए, हो गया यहाँ पे डिप्लॉय। आप इसको रिफ्रेश कर दो, यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, आप इसको कॉल करो, ठीक है। अब देखोगे आपका मैसेज, मैसेज कहाँ से आ रहा है, मैसेज आपने टाइप किया है चाइल्ड में, बट कहाँ पे आ रहा है आपका, पेरेंट में शो हो रहा है, राइट।
तो ऐसे हम अपना यूज करते हैं बेसिकली, जो भी हमारा चाइल्ड कंपोनेंट का कोई वेरिएबल बनाया, या फिर अब हम बात करते हैं मेथड की। तो मेथड कैसे बनाएंगे? ठीक है, अभी हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, अब हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं और उस मेथड को हम यूज करेंगे, राइट। तो मेथड को हम कैसे यूज करेंगे, अब हमें वो करना है। तो अब यहाँ पे हम इसको हटा दें। एनीवन एनी क्वेश्चन नाउ? मैं फास्ट हेलो। हूँ या? अगर सर इसमें यूपीआई यूज नहीं करते तो ये कॉल नहीं होता सर, एक बार वो और दिखा दीजिए प्रैक्टिकल करके। ओके, ठीक है, नाइस क्वेश्चन। ओके, अगर मैं यहाँ पे एपीआई हटा दूंगा तो क्या होगा? लेट्स डिप्लॉय दिस कंपोनेंट एंड नाउ चेक। अब हमारा मैसेज क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, या फिर वो कॉल क्यों नहीं होगा? कोई बता सकता है अभी? मतलब किसी को पास कोई आइडिया है? अगर कॉल क्लिक कर लो इसको। Sir, I think maybe due to the decorator, because decorator helps to accessing the block block or some particular code from parent to child component. राइट, बट अभी क्या है कि हमारा जो कंपोनेंट, जो हमारा यहाँ पे रिलेशन तो है इसमें, बट हमने इस वेरिएबल को पब्लिकली तो किया ही नहीं ना। एपीआई, एपीआई क्या करता है, हमारा उस किसी भी मेथड या किसी वेरिएबल को पब्लिक करता है, तभी तो हम यूज कर पाएंगे। अगर वो पब्लिक, ये अब जो वेरिएबल है ये सिर्फ इसी कंपोनेंट के लिए अप्लीकेबल है, आउटसाइड इस कंपोनेंट वो एक्सेसिबल नहीं है। आप किसी भी आउटसाइड इसको यूज नहीं कर सकते। तो अगर उसको आउट किसी अदर कंपोनेंट में यूज करना है या एक्सेस करना है, तो यू शुड बी मेक एपीआई वेरिएबल। ओके रवि? Sir, how we get know about the API decorator is public or private? नो नो, एपीआई बेसिकली वी आर यूजिंग फॉर पब्लिक। Okay, if we sir. yeah if we are taking any data from parent or any page or any other component, so and in which component do you want to that data, so that variable should be API only। तो अभी आई थिंक आपने सारा लेट में ज्वाइन किया होगा, हमने इसका इंट्रोडक्शन में वही बताया था कि एपीआई वेरिएबल बेसिकली क्या यूज करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एपीआई हटा दिया, तो हमारा क्या हुआ, एक्सेस नहीं हो रहा था डेटा, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब एक हम एपीआई मेथड बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेथड बनाते हैं हैंडल चाइल्ड मेथड। ओके, अभी यहाँ पे हमारा ये है, हम इसको क्या करते हैं, इस मेथड को इसी वेरिएबल को यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम करते हैं हेलो दिस मैसेज कॉल्ड और सेट फ्रॉम एपीआई मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमने आप एक मेथड बना दिया, अब क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको रिटर्न कर दो बेसिकली। इस में जो भी आप इस वेरिएबल का डेटा है, इसको आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे। अब रिटर्न क्यों करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली, तो इफ यू वांट एनी डेटा, एनी मैसेज फ्रॉम एनी योर मेथड, तो यू शुड बी रिटर्न। अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो वो मेथड आपको कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब आप कॉल तो कर रहे हो लेकिन वो मेथड आपने कुछ रिटर्न ही नहीं किया, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। तो हमें इसलिए पहले इसको रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मैसेज रिटर्न कर दिया। अब आते हैं पेरेंट कंपोनेंट पे, जो हमारा मेथड है, ये हैंडल चाइल्ड है हमारा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या कॉल किया था, वेरिएबल, तो हम ऐसे वेरिएबल कॉल करते हैं। लेकिन अब हमें कॉल करना है मेथड, तो मेथड को कॉल करने के लिए जो मेथड का नेम है उसको आप कॉपी करो, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो जो मेथड का नेम है बेसिकली, पेस्ट योर मेथड, देन मेथड शुड बी कॉल यूजिंग द पैरेंथेसिस बेसिकली। ओके, तो आपको यहाँ पे मेथड का नाम देना है और पैरेंथेसिस लास्ट में दे देना है। अब ये जो हमारा
वेरिएबल है, इसमें जो भी मेथड वहां से जो भी मैसेज रिटर्न हो रहा है तो वह इसमें क्या हो जाएगा, आपका होल्ड हो जाएगा या इसमें स्टोर हो जाएगा, राइट। तो अब इसको हम डिप्लॉय करते हैं यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। अब आते हैं अपने सेल्स फोर्स में, देन इसको हम रिफ्रेश करते हैं बेसिकली। अब इसको कॉल करते हैं, देखो, हेलो दिस मैसेज सेट फ्रॉम द एपीआई मेथड, राइट। So anyone, any question now, or otherwise we will move on the next decorator. Can we do this the other way? Is it only from child to parent? No, we can pass data parent to child also, but अभी हम we are not using concept for communicate to between two component. Okay, अभी हम बस Through learn, API. Through yeah, API. yes. Now we are only learning decorator, how API decorator working basically, and why we should do the API method public and variable public, how we can access that variable and method in parent or any other component basically. Okay, then we will start the parent to child relationship and other relationship. Then we will learn about how we can pass data parent to child and child to parent. Okay, so let's move on the next topic. Our Sorry to interrupt, sir. yeah, Ritesh. Can you please सर explain some मेरा एक क्वेश्चन था। One by one actually basically. Ritesh, go first. Sure, sir. Yeah. Sir, can you please tell me the some real world application where we use the API decorator? Real world basically, for example, this is our application. Okay, and now you want pass your data from parent to child or child to parent. Okay, so how you can pass your data basically? So Okay, without sir. Got it. API, yeah, without API you can't pass. If you I have given also the example. Okay, when I remove that API here, so we are unable to get this method and unable to get this message actually, this variable, because this is the private now. This method and this variable only for the this component. But when we want to use another component or a parent component, so how we can access? Then it should be the API only. Yeah, another one. हेलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ रवि। कि एपीआई डिकोडर हमारा पब्लिकली बनाने के लिए होता है सर, तो हम इसे सिर्फ पेरेंट चाइल्ड में यूज करते हैं, और भी सिनेरियो है जिसे हम इसे यूज कर और सकते हैं एपीआई और के भी लिए? सिनारियो अभी हम उसको और भी बताएंगे। अभी सुना रहे जैसे हमें अभी मान लो इस कंपोनेंट को हमें फ्लो में यूज करना है, या इस कंपोनेंट को हमें रिकॉर्ड पेज पर यूज करना, मतलब कंपोनेंट को हमें रिकॉर्ड पेज पे यूज करना है। और आपको रिकॉर्ड पेज से कोई आपको यूज करना है कि हमें यहाँ से अपना डेटा पास कर दो, या फिर हमें ऑब्जेक्ट के नेम पे हम अपने यहाँ पे कुछ डेटा दिखाओ कि मान लो हम अकाउंट पे कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो अकाउंट पे हमें ये फील्ड दिखाई देना चाहिए। अगर कॉन्टैक्ट पे यूज कर रहा हूँ तो एक यही सेम कंपोनेंट सिर्फ कॉन्टैक्ट वाला दिखाई देना चाहिए। तो आप उसको कैसे डायनामिक बनाओगे? तो क्या करोगे, आप एपीआई वेरिएबल बनाओगे, और वो आपका वेरियाई उसको कॉन्फ़िग, मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िग भी होता है, वो बताऊंगा आगे हमें कॉन्फ़िग कैसे करेंगे। तो कॉन्फ़िग में आपको जो वेरिएबल यूज होते हैं वो बेसिकली एपीआई होता है। तो आप अपने रिकॉर्ड पेज से उसको, या होम पेज से, या एप्लीकेशन से उसको आप एपीआई नेम पास कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट का, कि आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे जो फील्ड बस दूं वही फील्ड हमारा डेटा उस कंपोनेंट पे दिखना चाहिए। तो वो सारे फील्ड आप अपने कंपोनेंट से एडिट करके वहाँ पे बना सकते हो। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डायनेमिक कंपोनेंट को, सेम कंपोनेंट को डायनेमिक कैसे बना सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए कैसे कैसे सेम अपना कंपोनेंट यूज कर सकते हैं जैसे कि। ओके सर, ओके। ठीक है, ठीक है, तो Sir, लेट्स। one more question. हम्म। Sir, as you mentioned that the parent child has a decorator, and you can use as in one child. Is it possible to use in one or more child's component? हाँ हाँ, आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे एक पेरेंट कंपोनेंट है, राइट, यहाँ पे आप मल्टीपल कंपोनेंट यूज कर लो यहाँ पे।
आप आगे और कंपोनेंट यूज करते चले जाओ, बट इसको कॉल करने का तरीका होगा आपको ये वाला होगा। बट अभी ओके ये सर, ओके। अभी ये ओल्ड तरीका है, ठीक है। हम अभी लर्निंग कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बस ये डिफरेंस बता रहे हैं। बट LW सेल्सफोर्स ने नेक्स्ट एक रेफरेंस एपीआई करके मतलब अभी लॉन्च किया है। तो देन हम एपीआई रेफरेंस एपीआई के थ्रू भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे नेक्स्ट, जब हम थोड़ा अच्छे से सीख लेंगे, तब हम नई चीजें उसमें जो जो अच्छे अच्छे रिलीज आए हैं हम उसको यूज करके बताएंगे आपको correctly, ठीक है। देन लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट our API decorator basically. Okay, so this is our API. Next, so this is a wire API. Okay, so the wire decorator is used for to property or method in LWC component to a data source. This allow the component to automatically receive data from the specified data source without having to manual fetch or subscribe to the data, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको बेसिकली बेसिकली जो हमारा वायर मेथड है, हम इसके थ्रू कोई भी डेटा, कोई भी हमें मतलब ऑन लोड पे, जैसे ही हमारा पेज लोड हो रहा है उसी टाइम पे हमें अपना डेटा लोड करना है। तो हम वो डेटा लोड कैसे करें अब बेसिकली, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, और इसमें हम वायर का यूज करके पिक लिस्ट की वैल्यू भी फेच कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड हम आगे पढ़ेंगे, बट आज हम इतना करेंगे कि हम किसी भी एपेक्स मेथड को, वायर को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, और मतलब मैनुअली हमें ना करके हमें डेटा को, जैसे हमारा कंपोनेंट लोड होता है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हमारा वायर ऑपरेटर वायर अकाउंट प्रॉपर्टी टू द सेल्स फोर्स। तो हमें जो मेथड होता है, आप किसी भी एपेक्स को मेथड को कॉल करने के लिए आप देखो ऐसे बनाते हो, ठीक है। आपको इंपोर्ट, जो भी आपका मेथड का नाम है, इंस्टेंस नेम आपको ऐसे देना है आगे। उसके बाद फ्रॉम के बाद आपको ये देना है @सेल्स फोर्स एपेक्स, एपेक्स आफ्टर दैट एपेक्स क्लास का नाम, देन योर मेथड, एपेक्स मेथड का नेम बेसिकली। ओके, so let's go on the VS Code and try to use this one. Okay, so now we are VS Code. Okay, तो हम अभी क्या करते हैं, एक यहाँ पे आपको सबको पता है कि डेवलपर कंसोल आप कैसे यूज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ से आप सेटअप पे जाइए, यहाँ से डेवलपर कंसोल, ठीक है। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो या आप यहीं से भी कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको कैसे यूज करना है, यहाँ पे सेम वही Ctrl+Shift+P, यहाँ पे आप लिख दो क्रिएट एपेक्स। तो यहाँ पे देखो क्रिएट एपेक्स क्लास, तो यहाँ पे आप क्लिक करो। आपको जो भी अपने एपेक्स क्लास का नाम देना है आप दे दो, यहाँ पे अकाउंट कंट्रोलर, जो भी आपको नाम देना अपने एपेक्स क्लास का नाम दे दो और प्रेस इंटर। तो आप देखोगे जब भी आप क्रिएट करते हो कोई भी एपेक्स क्लास इन VS कोड में, बेसिकली आपको यहाँ पे एक उसका कंस्ट्रक्टर भी बना के दे देता है। ओके, तो बट आपको कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं करना है तो आप उसको हटा दो। बट आप यहाँ पे एक नोटिस करोगे तो क्या है यहाँ पे, जब भी हम यूज इन फ्यूचर एपेक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें सीखेंगे विद शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग क्यों यूज करता है, ठीक है। तो मैं आपको बस एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि जब भी कोई एपेक्स क्लास हो, आप हमेशा उसको विद शेयरिंग में ही लिखा करो। इससे क्या होता है कि जो भी आप OWD या फील्ड लेवल सिक्योरिटी आप सेल्सफोर्स में यूज करते हो, तो आपका एपेक्स क्लास वो फॉलो करता है। जो भी शेयरिंग रूल होते हैं उसको आप एपेक्स क्लास इन्फोर्स कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, दो यूजर हैं, एक यूजर को दो फील्ड की एक्सेस नहीं है और दो यूजर को उस फील्ड का एक्सेस है। तो बट जिस यूजर को नहीं है वो भी अगर उसको अपडेट कर पा रहा है या उस पर एक्शन परफॉर्म कर पा रहा है, तो सिक्योरिटी मॉडल से वो सही नहीं है। तो आप जब भी कोई एपेक्स क्लास लिखो, तो आप VS कोड से अगर आप क्रिएट करते हो तो आपको अलग से विद शेयरिंग लिखने की जरूरत नहीं होता है। VS कोड ऑलरेडी आपको यहाँ पे विद शेयरिंग लगा के देता है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें
अब एक हम यहाँ पे हमें यूज करना है एक ऑरा इनेबल। ठीक है, जैसे आप ऑरा इनेबल करोगे आपको ऐसे मेथड बन जाता है। तो हमें यहाँ से इसको हटा देते हैं। अभी हम ट्राई कैच यूज का नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करेंगे तो हम आप ट्राई कैच का भी पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो अगर आप मेथड का नाम है यहाँ पे, आप मेथड का अपना नाम दे दो, मान लो गेट अकाउंट डेटा। अब यहाँ पे आपने ऑरा इनेबल क्यों किया? क्योंकि अगर आप कोई भी एपेक्स क्लास के मेथड को यूज करना चाहते हो LWC में या फिर ऑरा में, तो आपको ये एनोटेशन होता है कि आप इस मेथड को लाइटनिंग में यूज करना चाहते हो। लाइटनिंग मतलब LWC और ऑरा कंपोनेंट में। तो अब अभी मैं यहाँ पे एक और होता है जिसको हमें देना होता है कैचेबल इक्वल टू ट्रू। जो अब जब भी आप मेथड को कॉल करते हो वायर के थ्रू, तो हमें वो बेसिकली देना होता है कि कैचेबल इक्वल ट्रू। बट हम अभी नहीं दे रहे, हम इसको क्या करेंगे बाद में देंगे, कि हमें पहले अभी एरर क्या आएगा। अगर हम वायर का यहाँ पे कैचेबल इक्वल ट्रू नहीं देते हैं तो एरर क्या मिलेगा। तो हम पहले आपको एरर दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो आप देखो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो रिटर्न, यहाँ पे सेलेक्ट ID कॉमा नेम, और आगे कुछ भी आपको नाम जिसमें जो भी फील्ड सारे आप वो लिख सकते हो, वेबसाइट डॉट इंडस्ट्री। तो आपको जो भी उसमें फील्ड है आप वो लिख सकते हो फ्रॉम अकाउंट। मुझे ज्यादा अकाउंट नहीं लाना है तो मैं यहाँ पे लिमिट 10 दे देता हूँ। और यहाँ पे अब यहाँ पे हमने यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है कि रिटर्न हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग दिखा रहा है। तो हमें स्ट्रिंग नहीं, हमें यहाँ पे अकाउंट टाइप का लिस्ट रिटर्न करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, उसको यहाँ पे लिस्ट कर लो इसको बेसिकली। ठीक है, अब इस मेथड को आप डिप्लॉय करना चाहो तो यहाँ से राइट क्लिक करके डायरेक्टली भी डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है। सर रिटर्न टैब रॉन्ग हो गया है इसमें। हम्म, हाँ, अब यहाँ पे देखिए डिप्लॉय सोर्स टू और एनालिसिस फेल्ड समथिंग इनवैलिड टाइप हैंडल चेक मेथड। हेलो सर, इसमें रिटर्न टैब अकाउंट आएगा सर, इसमें लिस्ट अकाउंट। लिस्ट, ओके सॉरी, मेथड यहाँ पे कॉपी हो गया, ये अकाउंट हो, जो कॉपी था वही पेस्ट हो गया। ठीक है, अब डिप्लॉय कर लो यहाँ पे, तो क्या होगा, डिप्लॉय हो जाएगा इसे। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन इसमें क्या इशू आता है कभी कभी। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है ही नहीं, तो उस टाइम पे आपको कंपोनेंट एरर देने लगता है, नल एरर देने लगता है, या फिर आप वो देता है कि नो एनी डेटा फाउंड इन दी ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप उसको भी वहां पे वैसे, बट जो बेस्ट तरीका होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप एक अलग से अकाउंट का लिस्ट बना सकते हो। अकाउंट का लिस्ट बनाने के बाद फिर उस SQL क्वेरी के लिखिए वहाँ पे उसमें, फिर उसका साइज चेक कीजिए कि साइज कितना ग्रेटर देन है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बट मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। बट आप कैसे करोगे, तो वैसे भी उसको कर सकते हो। आप देखोगे अकाउंट मैं दे दिया आपकी ACC लिस्ट। ठीक है, तो अभी जिसको एपेक्स ज्यादा नहीं आता है, तो आप हम जितना सिखा रहे हैं उतने भी से कर लोगे तो भी इतना आपको आ जाएगा कि अब अगर आपको कॉन्टैक्ट का डेटा लेना है तो कैसे करोगे, अकाउंट की जगह पे चेंज हो जाएगा, कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अगर अपॉर्चुनिटी का डेटा लेना था, अपॉर्चुनिटी की जगह अकाउंट की जगह पे आपका अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको जो आपने लिस्ट बनाया है यहाँ पे इसको ये कर दो। ठीक है, देन आपको अब SQL क्वेरी लिखना है इसमें। तो अब इसे SQL क्वेरी का कॉपी करके यहाँ पे इसके अंदर डाल। ओके, अब यहाँ पे एरर हैंडलिंग या बेस्ट प्रैक्टिस करता है कि आप इसको पहले चेक कर लो कि आपका लिस्ट कोई तो यहाँ पे इसमें कोई डेटा तो नहीं आ रहा है। अगर डेटा आता है तभी करना है। तो यहाँ पे आप डॉट साइज चेक कर लो इसकी, इसकी साइज कितनी है, ग्रेटर देन 0। अगर इसकी साइज ग्रेटर देन 0 है तभी इस लिस्ट को यहाँ पे रिटर्न कर दो। एक, ठीक है, और इसके बाहर भी रिटर्न देना ही होता है। तो अगर आप इसको सेम लिस्ट को अगर नहीं देना चाहते हो, पहले यहाँ पे रिटर्न अगर हो जाएगा तो दोबारा इसके नीचे का कोड हमारा चलता नहीं है। ठीक है,
क्योंकि हमारा जो रनिंग का कोड है वो रिटर्न हो चुका है यहाँ से पहले ही। अगर ये वाला सर्टि या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तब ये वाला कोड चलेगा। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी बेस्ट प्रैक्टिस लिख सकते हो। अब चाहते हो कि अगर कोई इसमें डेटा नहीं आया, यहाँ पे कोई एरर देना चाहते हो, यहाँ पे आप नल पास करना चाहते हो यहाँ पे, तो इसमें आप रिटर्न नल का भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो लिस्ट होता है वो नल भी एक्सेप्ट करता है और ऑब्जेक्ट भी नल एक्सेप्ट करता है। तो रिटर्न टाइप आपने लिस्ट दिया तो यहाँ पर नल भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने तो कर लिया इसको। अब हमें इस मेथड को कॉल करना है। तो कहाँ पे कॉल करना है? अब किसी भी कंपोनेंट पे आ जाओ। हमने यहाँ पे आया था चाइल्ड पे, तो आप चाइल्ड पे कर लो या फिर पेरेंट पे कर लो। तो हम चलो चाइल्ड पे कर लेते हैं यहाँ पे। अब इस एपेक्स मेथड को इंपोर्ट कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको यहाँ पे टॉप पे जहाँ पे यहाँ इंपोर्ट लिखा है उसी के नीचे आप एक और इंटर मार के यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे इंपोर्ट लिखो, तो यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो, टेस्ट दे दो या पेज रिकॉर्ड दे दो। ठीक है, आप ये कोई भी नाम दे सकते हो जो एलियास नेम होता है। लेकिन जो मैं प्रिफर करता हूँ, हमेशा मैं जो मेथड का नाम होता है वही देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे याद रहता है कि और कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत नहीं होता है कि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मैं इस एपेक्स क्लास का इस मेथड को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस मेथड का यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो उससे मेरा अ, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं उसको यूज करता हूँ। अब इसके बाद फ्रॉम लिखते हैं। फ्रॉम के बाद हमें यहाँ पे देना होता है @salesforce देन एपेक्स। ठीक है, आफ्टर दैट अगेन फॉरवर्ड स्लैश। अब आपका जो एपेक्स क्लास का नेम है ये, उसको कॉपी कीजिए, देन यहाँ पे पेस्ट डॉट जो आपका मेथड का नेम है, बेसिकली दिस देन सेमीकोलन। ओके, अब आपका यहाँ पे मेथड का नेम सब कुछ हो गया, कि आपको मेथड का नाम आपने यहाँ पे वो कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब इसको क्या करोगे? मतलब आपने मेथड को कॉल कर लिया। अगर आप इसको यूज करोगे इसमें मेथड को, तो हमें यूज करना है बेसिकली वायर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे वायर यूज करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एनीवन एनी सजेशन कि हमें इंपोर्ट वायर? करके We have to write a wire in that import method. हाँ, और तो easy के हमें बगल पे wire import. राइट, तो हमें पहले यहाँ पे एपीआई है, एपीआई के बगल में हमें पहले यहाँ पे अपने वायर को मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। विदाउट उसको इंपोर्ट किए हम तो यूज ही नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करना है हमें इसको? बेसिकली अब इसको हमें कॉल करना है। ठीक है, तो कॉल करने के लिए हमें बस यहाँ पे आना है। अभी हम इसको मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं, इसको हम यहाँ पे आते हैं। अब इसको यूज करने के लिए हमारे पास सेम तरीका है कि आपको सेम लिखना है उसके बाद उस मेथड का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेम मेथड का नाम यहाँ पे ले दो, वायर। ओके, वायर दे दिया आपने। वायर के बाद आपको देना होता है, या तो आप यहीं पे लिख सकते हो, या मैंने आपको बताया था आपको इसको नीचे इंटर मार के ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हमें जो मेरा मेथड का नेम है, मेथड का नेम इसमें डाल दो। ठीक है, मेथड का नेम देने के बाद अब इसके बाद आपको वेरिएबल का नेम देना होता है। तो मैंने दे दिया एसीसी ऑब्जेक्ट डेटा, दैट्स ऑल। ये आपका मेथड हो गया, डेटा इसमें अब आ जाएगा। तो अब इसको क्या करो यहाँ से, अब क्या देगा? कोई एरर आएगा? इसमें यहाँ पे आपने यहाँ पे कॉल कर लिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम
आते हैं अपने कंपोनेंट पे, हम चाइल्ड कंपोनेंट पे हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो अभी चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे हमें, अब इसमें डेटा कैसे आएगा, डेटा यहाँ पे हमें शो करना है। तो आप चाइल्ड कंपोनेंट पे ही आके यहाँ पे आपको, अब हमें यहाँ पे एक टेम्पलेट होता है, एक टेम्पलेट मतलब यूज करना होता है। अगर आप ऐसे डायरेक्टली यूज करोगे तो हमें यहाँ पे एक फॉर ईच होता है डेटा, ठीक है। तो मैं आपको अभी इसमें बता देता हूँ कि फॉर ईच कैसे यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे टेम्पलेट, देन फॉर ईच, ये वाले फॉर ईच, ठीक है। इसके बाद जो आपका लिस्ट आ रहा है यहाँ पे, जो आपने वेरिएबल का नाम दिया है, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसको डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला होता है हमारा फॉर ईच, देन फॉर आइटम, दिस फॉर आइटम। यहाँ पे आप वेरिएबल का नेम अपना दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज कर दो। अब आपको इसको प्रिंट करना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना एक पी टैग बना देता हूँ और इस पी टैग में मैं जो मेरा नेम आ रहा है अकाउंट का, उसको बस प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, प्रिंट करने के लिए सेम वही कर्ली ब्रेसेस, देन इसका नेम। तो आप अगर यहाँ पे स्मॉल में लिख रहे हो तो यहाँ पे स्मॉल में दो, अगर कैपिटल में लिख रहे हो तो कैपिटल में दो, ताकि आपका डेटा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का होता है शेष केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये दे दिया बेसिकली। अब यहाँ पे देखोगे एरर आ रहा है, बोल रहा है की। तो जब भी आप कोई आइटरेशन यूज करते हो इसमें, तो आपको एक अपने यहाँ पे की देना पड़ता है उसको यूज करने के लिए। तो मेरा जो आइटरेशन आ रहा है उसी आइटरेशन को मैं यूज करके यहाँ पे उसकी आईडी या नेम भी, नेम चाहो तो नेम भी पा सकते हो। तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ये फॉर इसका कंडीशन होता है अगर आप फॉर चीज करते हो तो, ठीक है। अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ यहाँ पे, मैंने डिप्लॉय कर दिया। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि मेरे चाइल्ड कंपोनेंट डेटा आ रहे हैं, फिर भी वो डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप कंपोनेंट यूज कर रहे हो, पहले आपका HTML कॉल होता है, फिर जावास्क्रिप्ट कॉल होता है। तो इसलिए उसको यहाँ पे डेटा में कुछ मिला ही नहीं, इसलिए वो एरर आ गया, राइट। अब आपको क्या करना है, इसको यूज कि आपका HTML ए वाला सेक्शन जब तक डेटा ना आए तब तक रेंडर ही ना हो। ओके, तो क्या करोगे यहाँ पे, एक कंडीशन होता है इसमें, टेम्पलेट इफ ए ट्रू, अगर इसमें आपका डेटा आएगा तभी ये वाला सेक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप सेक्शन के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन अभी मतलब समझ में ना आया हो, ये क्यों कर दिया हमने ऐसा? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सर वो की अकाउंट डॉट आईडी समझा नहीं सर वो। हाँ, क्योंकि आईडी यहाँ पे हमने क्यों दिया है, बेसिकली देखो आप यहाँ पे नेम भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या होता है जब आइट्रेशन होता है ना, तो आइट्रेशन में हमें इसको नहीं पता कि कौन सा डेटा किस पे प्रिंट हो रहा है। तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें की देना पड़ता है कि ये मतलब नेम, अगर ये मैं नेम यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो इस पी टैग को मुझे नहीं पता। अगर आपको इन फ्यूचर आपको इस डेटा, इस नेम को फेच करना है किसी जावास्क्रिप्ट में, तो आप किसके थ्रू मतलब उसको गेट कर पाओगे। तो आप क्या होगा कि एक आपका एक आईडी की तरह काम करता है बेसिकली। ओके तो हाँ। तो आपका उसको आईडी की तरह काम करता है, तो आप उसको गेट कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब बेसिकली। ओके, ओके ओके यस यस। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि आप वो रेंडर कर, जब भी रेंडर होगा तो LWC पेज ER नॉट LWC कंपोनेंट, हार्ड रीलोड करा था। ओके, यहाँ पे इसको हार्ड रिलोड करते हैं।
यहाँ से हम इसको हॉट लोड करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे नजर भी मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे एक किया, उसके बाद हमने यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट, अपने मेथड को इंपोर्ट किया। ओके, इंपोर्ट करने के बाद हम इसको वायर मेथड को यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, अब क्या होगा कि यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा होगा, तो ये भी हो सकता है कि इसमें दिक्कत क्या है कि हमारे पास डेटा ही नहीं आ रहा है, इसलिए वो एरर में जा रहा होगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस डेटा इज या ओके, सॉरी, एक्चुअली हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, ओके, मेथड हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में, और यहाँ पे हमें एरर क्या मिल रहा है कि जो IWC कंपोनेंट हमारा है पेरेंट पे, वो वहाँ पे कुछ एरर दिख दे रहा है, मतलब बेसिकली हमने पेरेंट को इसको कॉल किया जहाँ पे, ओके, यहाँ पे। तो ठीक है, हम अब आते हैं पेरेंट, क्योंकि पहले क्या होता है, चाइल्ड कॉल होता है देन पेरेंट कॉल होता है, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं, इस मेथड को हम पेरेंट पे ले आते हैं, या फिर ओके ठीक है, चाइल्ड में ही देखते हैं इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे हो सकता है कि जो हमने मेथड दिया है, ठीक है, वायर यूज करें, तो हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें यहाँ पे इक्वल टू हमें वो देना पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, तो हमें पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि जब भी हम वायर से यूज करते हैं तो वायर में हमें उसका एरर का ज्यादा वहाँ पे वो समझ नहीं आता कि यहाँ पे हमें एरर क्या मतलब एरर क्या दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम एरर का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो वो डेटा हमें बाद में हमें चेक करना होता है। तो अब वो एरर कैसे यूज करते हैं हम, तो हमें उसको जो भी डेटा प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी डॉट डेटा से डेटा आता है, और प्रॉपर्टी डॉट एरर से एरर दिखाता है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक बार इसको हम यहाँ पे डेटा दे देते हैं, यहाँ पे हम जो हमने यूज करना था कैचेबल इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देना होता है कैचेबल, CHEABL, ओके, कैचेबल इक्वल टू ट्रू, दिस वन, देन इसको हम डिप्लॉय कर लो एक बार। ओके, आफ्टर डिप्लॉय दिस, यहाँ पे आके इसको आप कई बार दोबारा डिप्लॉय करके यूज करते हैं, @salesforce apex क्लास में हमें आपको आपका मेथड में वायर एंड दिस, ओके, लेट्स अगेन कॉम दिस function during the IWC component is PR is यहाँ पे हमने कुछ तो दिया है, तो वहाँ पे इशू कर रहा है, इसको हम अपने कमेंट से डालते हैं। ये वायर का इशू है, तो ओके, जो मेथड को कॉल नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे आते हैं और इस ऊपर एक कमेंट को कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम अपना वायर मेथड को कॉल करते हैं विदाउट एनीथिंग, ठीक है। तो जो भी हमारा यहाँ पे मेथड होता है, जैसे कि अब यहाँ पे हमने इसको कॉल किया, ओके, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे अपना दो वेरिएबल हमें मिलता है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। दो वेरिएबल कौन कौन से होते हैं वो, अब यहाँ पे आओगे, एक होता है हमारा डेटा, ओके, और दूसरा होता है हमारा एरर, कॉमा एरर, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जाता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जिसको, ओके। तो इसलिए शायद उसका दिक्कत कर रहा होगा कि एरर नहीं आ रहा था। तो अब यहाँ पे हम इसको, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली वैसे मतलब यूज करना है, तो यहाँ पे डबल इंटर मार के यहाँ पे आप अब अलग कोई आप एक वेरिएबल बना सकते हो, यहाँ पे आपको ऊपर वेरिएबल देना है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हो, यहाँ पे डेटा मान लो, मैं डेटा नाम पे एक वेरिएबल बनाया,
और यहाँ पे मैं अब चेक कर लेता हूँ कि क्या यहीं पे मेरा डेटा एरर तो नहीं आ रहा है। तो आप चेक कर लो इफ डेटा, अगर आपका डेटा आया तो आपको डेटा में डाल दो यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने बताया था वेरिएबल को यूज करने के लिए आपको दिस डॉट डेटा गेन इक्वल टू डेटा, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर डायरेक्टली एरर भी देना है तो यहाँ पे एरर को यूज करने के लिए आप यहाँ पे एक एरर वेरिएबल बना लो, और उसको एरर को भी आप यहाँ पे अपना एरर भी स्टोर कर सकते हो कि क्या एरर आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे आप दिस डॉट एरर इक्वल टू एरर डाल सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा जो डेटा है, अब हमें जब यूज करना होगा तो आपको ये वाला वेरिएबल यूज करना होगा अपने कंपोनेंट। यहाँ पे अब इसको आप ये पास कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं कंपोनेंट। तो ये हमारा डिप्लॉय हो गया। अब यहाँ पे आओ, अब रिप्लेस करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट के पास हमारे पास डेटा नहीं दिख रहा है। तो हम कंसोल में चेक करते हैं कि कोई यहाँ पे डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कंसोल में डेटा हम कैसे चेक करते हैं, अगर यहाँ पे आपने वायर मेथड जो भी दिया है मेथड का नाम, ठीक है, यहाँ से आप कंसोल लगा सकते हो डायरेक्टली। कंसोल डॉट लॉग एलओजी, और यहाँ से आप चेक करो कि डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, दिस वन, ओके। और आपको यहाँ पे एरर प्रिंट करना है तो इंटर देन एरर में आप एरर डाल दो। यहाँ पे हम एरर डाल देते हैं। इससे क्या होगा, आपको मालूम होगा कि इसमें क्या इशू है और कि डेटा नहीं आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे नेम दिया है, अगर डेटा आ रहा होगा, अगर इसका नेम जिसे हमने यहाँ पे बाइंड किया है, अगर नेम हमने गलत बाइंड किया है, अगर स्टार्ट और कैपिटल से डेटा आ रहा है हमारे लिस्ट में और हम यहाँ पे उसको स्मॉल में लिखा है तब भी डेटा नहीं देता है, तो वो आपको चेक करना होता है इसके। तो देखिए एरर हमारा अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पे, मतलब एरर तो नहीं आ रहा है लेकिन डेटा आ रहा है। लेकिन डेटा में अगर आप चेक कैसे करोगे कि डेटा यहाँ पे कैसे आ रहा है फॉर्म में, अगर आप देखोगे यहाँ पे नेम किस में आ रहा है, कैपिटल में, और हमने क्या बाइंड किया है, स्मॉल से। तो ये अभी हमारा, क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है। अब यहाँ पे आप इसको कैपिटल बाइंड करो और दोबारा इसको डिप्लॉय करो, तो आप देखोगे आपका जो डेटा है वो सारा प्रिंट होने लगेगा। क्योंकि डेटा तो हमारा आ रहा है लेकिन हमने यहाँ पे जो बाइंड किया वो वेरिएबल से ही बाइंड नहीं हुआ है, मतलब आ रहा है कैपिटल में, हम दे रहे हैं उसको स्मॉल में। तो अब देख आपका डेटा यहाँ पे ये सारे आने लग गए, ठीक है। हमने लिमिट 10 दिया था इसलिए 10 डेटा आ रहा था अभी, ओके। तो ऐसे वायर से आप उसको यूज कर सकते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। तो किसी को अभी अभी कोई कंफ्यूजन या किस ऐसा ऐसा क्यों कर दिया हमने समझ नहीं Sir, आया। what is the difference between decorator wire and the API then? Because API is using for accessing the method and the variables from one component to another component. राइट, And what is the mean of that at the rate wire decorator exactly? okay. So wire decorator basically we can call any apex method, okay, we can call any schema method using the wire method. Wire method basically call your server side, okay, means if you are writing any apex class, so you can call that apex class on load, okay। जब भी आपका कंपोनेंट लोड होगा उस टाइम पे आपका apex क्लास कॉल हो जाएगा। तो आपको कोई डेटा ऑन लोड पे लेकर आना है तो आप वायर का यूज कर सकते हो। आपको कोई पिक लिस्ट की वैल्यू लेनी है, जैसे अकाउंट में स्टैंडर्ड इंडस्ट्री है उसकी आप पिक लिस्ट की वैल्यू लाते हो, तो पिक लिस्ट की वैल्यू के लिए हमें स्कीमा यूज करना पड़ता है, जो हमें मतलब वो भी हमें जावास्क्रिप्ट में ही करना पड़ता है, LWC में ही। तो वो भी हम वायर के थ्रू ही कर सकते हैं बेसिकली।
तो वायर Okay, sir. Thank you, sir. एपीआई को हम वेरिएबल बना सकते हैं, एपीआई से हम वेरिएबल को पब्लिकली बनाते हैं, लेकिन वायर के थ्रू हम किसी एपेक्स के मेथड को कॉल कर सकते हैं, किसी अपने एलडब्ल्यूसी की स्कीमा को कॉल कर सकते हैं डेटा एक्सेस करने के लिए किसी। तो Got एक it, तो sir. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक तो आप ऐसे कॉल कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पे दिया था अभी ऐसे। ओके, तो आपने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया। अब इसमें आप आगे कोई पैरामीटर पास करना है, जैसे यहाँ पे कॉमा करके, ठीक है, आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दो, ऐसे करके आप अपने पैरामीटर को भी पास कर सकते हो यहाँ पे इसमें वायर मेथड में। लेकिन पैरामीटर पास करने के लिए तो आपको, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सिर्फ एक डेटा मतलब वो बेसिकली जब आप सर्च फंक्शनलिटी यूज करते हो, ठीक है, कि आप जब फर्स्ट सर्च फंक्शनलिटी यूज कर रहे हो और यहाँ से डेटा टाइप कर रहे हो तो नीचे डेटा आ रहा है, तो वो हम आगे एक सर्च फंक्शनलिटी का ही हम क्लास करेंगे, तो उसमें सारा सर्च फंक्शनलिटी ही सीखेंगे, वायर के थ्रू भी और बिना वायर के थ्रू भी, कि किसी ऑन क्लिक पे हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे वायर का, अब यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करना है तो मैं अभी हार्ड कोडेड पास करता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया यहाँ पे अभी के लिए स्ट्रिंग नाम से दे देता हूँ, मतलब मेरा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डेटा आएगा, तो मैं यहाँ पे मैं देता हूँ नेम, तो मेरा अगर इसका नेम यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज दे देता हूँ। ठीक है, वेयर नेम इक्वल टू एफएक्स क्लास में हम वेरिएबल इसे बाइंड करते हैं। ठीक है, इक्वल कॉलम देन वेरिएबल में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया था डायरेक्टली, यहाँ पे मान लो ये मेरा नेम है, एक एक इसका। अब मुझे अभी हार्ड कोडेड पास करना है, मैं हार्ड कोडेड पास करूंगा, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आओगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो acc नेम के नाम से। इस वेरिएबल को मेरा डेटा मैंने अभी देखो मैं हार्ड कोडेड कर रहा हूँ, लेकिन वो डायनेमिक भी होगा, तो आपको क्या करना, डायनेमिक के लिए सिर्फ वेरिएबल नेम, तो जैसे वेरिएबल पास करना है आपको, वेरिएबल तो ऐसे सेम ही लिखना है, बस आपको डेटा कहाँ पे कॉल करके कैसे पास करना है वो बस देखना है, कि मेरे पेरेंट्स डेटा आ रहा है तो पेरेंट्स से भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो आपको वेरिएबल यहाँ पे दे दिया, आपको वेरिएबल यहाँ पे कैसे पास करना है, तो वेरिएबल पास करने के लिए हम यहाँ पे देते हैं सिंगल कोट्स देन डॉलर और आपका वेरिएबल का नेम। तो जब डॉलर तभी लगता है जब हम वायर यूज करते हैं, मतलब इम्परेटिव नॉन इम्परेटिव होता है। ठीक है, जब हम नॉन नॉन इम्परेटिव यूज करेंगे तो हमें उसमें डॉलर की जरूरत नहीं पड़ता है, तब हम डायरेक्टली पास करते हैं, मतलब हम कैसे कॉल करेंगे वो हम आगे सीखेंगे, अभी हम सिर्फ वायर मतलब डेकोरेटर पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको आप डिप्लॉय कर दो यहाँ पे। तो हमारा डिप्लॉय फेल्ड हो गया यहाँ पे, पैरामीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको पैरामीटर का नाम देना पड़ता है पहले, ये पैरामीटर का कॉल नेम, नेम कोलन। यस, पैरामीटर का नाम आप यहाँ पे दो, देन उसके बाद कॉलम। ओके, उसके बाद आपका जो पैरामीटर आप पास कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, देन यहाँ से डिप्लॉय। ओके, तो ये आपका डिप्लॉय हो गया। अब यहाँ से आप रिफ्रेश करोगे तो आपका एक ही डेटा होगा, क्योंकि जो हमने हार्ड कोडेड पास किया है। तो आगे के वीडियो हम अभी और सीखेंगे यहाँ पे सर्च फंक्शनलिटी का काम, सर्च फंक्शनलिटी करेंगे तो काफी आपको यहाँ पे एक ही डेटा आ रहा है, क्योंकि हमने अभी पैरामीटराइज पास किया। तो हम आगे आगे सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे से हमारे जो यहाँ पे नेम है वहाँ पे हम टाइप करेंगे, और ये पेरेंट टू चाइल्ड भी डेटा पास करेंगे और उसको यूज भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास कम टाइम बचा है, ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं 5। तो ओके, तो आप ऐसे ये कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा था वायर एपीआई। अब आते हैं हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा है आपका ट्रैक डोकेटर। ओके, तो ट्रैक डोकेटर पे हम आते हैं थोड़ा। So track decorator basically this one. Okay. So the track decorator is used for track changes to a property in LWC component.
this is allow to component automatically render itself whenever the value of the decorated properly change. ओके, तो जब भी आपकी वैल्यू चेंज होगा वो ऑटोमेटिक हो आपको उसको बेसिकली आप कहते हो उसको रेंडर हो जाएगा। आपको कोई डेटा चेंज हुआ वो रेंडर मतलब HTML पे रेंडर हो जाता है, बेसिकली वो चेंज कर देता है। तो कोई भी डेटा चेंज होगा वो ऑटोमेटिक लाई आपको, जैसे अभी हमने ट्रैक यूज करते थे। तो आते हैं हम यहाँ पे अपने VS कोड में, ठीक है। तो अपडेट उसको हम चेंज करके देखते हैं कि कैसे वो हमारा चेंज होता है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखोगे हम यहाँ पे अब बनाते हैं एक वेरिएबल जो हमारा ट्रैक टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे या मैं आता हूँ पेरेंट पे ही, मैं यहाँ पे एक अब मैं टैग हटा देता हूँ, यहाँ से मैं BR टैग यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं एक डिव दे देता हूँ सेक्शन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका टैग वगैरह बेसिकली। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो हम एक यहाँ पे दो ये बना लेते हैं मेथड, दो बेसिकली बटन, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे दो एक समथिंग इंक्रीज काउंट, ओके, हैंडल इंक्रीज, ओके। एक और मेथड बना लो यहाँ पे, यहाँ पे दे दो आप डिक्रीज काउंट, ओके। तो यहाँ पे आप दे दो हैंडल डिक्रीज, ओके। दोनों मेथड आप यहाँ पे कॉपी करो, मेथड का नाम LWC कंपोनेंट में आइए, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। देन अब एक वेरिएबल बनाते हैं ट्रैक टाइप का यहाँ, ओके। तो ट्रैक बनाने से पहले हमें यहाँ पे उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो आप इंपोर्ट कर लो। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल उस वेरिएबल को यहाँ पे ट्रैक लिखिए @ट्रैक, देन काउंट, मैं यहाँ पे काउंट लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जब भी मेरा ये मेथड कॉल होगा तो क्या करेगा, दिस डॉट इक्वल टू दिस डॉट माइनस, ठीक है। वो डिक्रीज कर देगा, सॉरी इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे प्लस प्लस, ओके। अब डिक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्रीज का मेथड कॉल कर लो। सेम डिक्रीज के लिए देखो आप एरो मेथड कैसे बनाते हैं मैं बता दूंगा। एरो मेथड बनाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, इसके बाद ऐसे करके इक्वल, देन ऐसे, ये आपका एरो मेथड बन गया। तो आप ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, दोनों मेथड का नहीं मतलब आपका सेम है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप माइनस माइनस कर दो, ठीक है। अब इसी वेरिएबल को आप यहाँ पे यूज कर लीजिए अपने HTML टैग पे, बेसिकली यहाँ पे मैं B टैग देता हूँ ताकि वो डेटा अच्छे से हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैं div के अंदर ही उसको डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं और लेट्स डिप्लॉय दिस वन, ओके। अब यहाँ आते हैं अपने कंपोनेंट पे, इसको रिफ्रेश, अब यहाँ पे देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा है ब्लैंक, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इंक्रीज, तो यहाँ पे नन आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया बेसिकली, मतलब ये हमारा वेरिएबल किस टाइप का होगा, तो ना उसको इंक्रीज कर पाएगा ना डिक्रीज कर पाएगा। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट 0 साइन कर देते हैं ताकि हमारा जो वेरिएबल इस वेरिएबल का इक्वेशन हो वो हो जाए आपका इंटीजर टाइप का, क्योंकि एल डब्ल्यू सी या जावा स्क्रिप्ट में बात करो तो जो भी वेरिएबल बनाते हैं हम जावा स्क्रिप्ट में
आप जिस टाइप की वैल्यू असाइन करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। तो मैंने जीरो असाइन इसलिए कर दिया कि बाय डिफॉल्ट वो आपका जो फंक्शनलिटी उसके हो या प्रॉपर्टी उसका चेंज होके वो उसमें बदल जाए आपका इंटीजर टाइप में। अब मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ कि यहाँ पे मेरा ये मेथड इसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको देन इसको मैं +1 कर देता हूँ, ऐसे करके लिख देता हूँ, क्योंकि अगर ये मेथड काम नहीं कर रहा है तो, और यहाँ से मैं -1 कर देता हूँ। ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं इसको, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी होती है उसमें वो मतलब इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल फंक्शनलिटी ले ना ले, तो यहाँ से आपको चेंज तो नहीं होना चाहिए। काउंट दिस डॉट काउंट हमारा ये मेथड है। ओके, ऑन क्लिक चेक कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लो आप, इसका नाम कंसोल लगा के देख सकते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं पहले, यहाँ से अगर नहीं चलता है तो हम इसको ये मेथड ब्रैकेट कॉल में इवेंट इवेंट लिखना पड़ेगा मे भी। नहीं, बट लिए हम इवेंट तभी लिखते हैं जब हम इवेंट कोई फायर कर रहे हैं, यहाँ तो हम ऑन क्लिक करके डालते हैं मेथड कॉल कर देना है, तो ओके। उसका नीड नहीं होता है। ओके, तो हम यहाँ पे दिस काउंट एंड इक्वल टू काउंट +1 और इक्वल टू काउंट -1, और यहाँ पे हमने देखते हैं इसके काउंट लिस्ट, क्लिक करके चेक करते हैं दोबारा इस पे, ये क्या, इसको एक बार हम हार्ड लोड करते हैं, क्योंकि अलग से में कभी कभी बहुत दिक्कत होती है कि हम ये हार्ड लोड नहीं होता है तो डेटा नहीं हार्ड लोड कर लो उसको। देन हम इसको कॉल करते हैं, अब देखो यहाँ से डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से इंक्रीज होता जाएगा हमारा। ओके, तो जो भी हमारा चेंजेज होगा उस ट्रैक के थ्रू उसको ट्रैक करता है। मतलब बेसिकली अगर सेल्स फोर्स की बात करें तो सेल्स फोर्स ने रिकमेंड किया है कि अगर हम यहाँ पे ट्रैक यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तब पर भी सेल्स फोर्स मतलब LWC में बाय डिफॉल्ट इसको ट्रैक ही लगाता है यहाँ पे, तब पर भी आपका काम करेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू सेल्स फोर्स ये काम करना चाहिए और करना, तो आप ट्रैक यूज करो। लेकिन कभी कभी डायनेमिक कैलकुलेशन डायनेमिक चेंजेस हम करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी वो प्रॉपर डेटा नहीं देता है, तो उस केस में क्या होता है कि यूज करना ही पड़ता है। मैंने सॉर्टिंग का एक बार किया था, तो सॉर्टिंग में क्या हो रहा था कि जो एरो चेंज होना चाहिए बाइट, जब मैं एरो पे क्लिक करूं और जब वो शॉर्ट हो तो एरो डाउन हो जाना चाहिए, जब शॉर्ट नहीं है तो ऊपर हो जाना चाहिए, तो मैंने इसे डायनेमिक किया था। तो मैं उस टाइम पे मैंने उस पे ट्रैक यूज नहीं किया था, तो क्या हो रहा था कि दिक्कत कि वो डेटा प्रॉपर हो ही नहीं रहा था। देखो अब यहाँ पे यूज कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट ट्रैक देता है। जब आप ऐसा फंक्शन देखो, बाय डिफॉल्ट आप ट्रैक मत यूज करो, ठीक है, सेल्स फोर्स उसको देता है, लेकिन जब आपको लगे कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो डेटा प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो ट्रैक आपको यूज करना ही पड़ता है कि वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं ले पा रहा है। बट इन फ्यूचर हो सकता है सेल्स फोर्स ट्रैक को डेप्रिकेट कर दे, क्योंकि अभी उसने बोला है कि बाय डिफॉल्ट आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे बनाते हो तो ट्रैक ही होता है, मतलब बिहाइंड में उसको ट्रैक लग जाता है। ओके, ठीक, तो anyone any question now? So I think we have completed our today topic. So Yeah, can you please on the same lines. re-slide the Mm-hmm. is So what sir you re-slide guys? the sir Uh-huh. re-slide the track slide where you write the definition of the track. Okay, let me show Just you. want to take a screenshot. So
Okay, let's are you able to see? Yes, आप sir, it is visual. ओके, आपको अगर इसे इसके बारे में पढ़ना है ज्यादा तो आप ले भी सकते हो, मतलब बेसिकली आपके पास मतलब सेल्सफोर्स के डेवलपर गाइड पे जाओगे तो आपको वहाँ पे इसके बारे में पूरा डेफिनेशन मिल जाएगा। आप मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी कुछ भी पढ़ो तो आप को ट्राई करो सेल्सफोर्स डेवलपर गाइड से ही पढ़ो, जो भी डेफिनेशन है वो आपको वहाँ से प्रॉपर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो Yeah. एनीवन Uh, हैव एनी yes. क्वेश्चन नाउ? या Yes. Actually, how many wire methods can we use in a component? Can we use more than one wire? Yes, you can use more than one. You can use 5, 10, more than one, no problem. But if any dependency, okay, for example, you want if first a wire method call, then second wire method call, you can't chainable here. If you want to chainable, so you can't chainable. If you want to chainable, so you can create call method implementive. Then you can call that method in async, basically in sync JavaScript method. Okay, but if you want like all the data like all basically account data, contact data, opportunity data, so you can get on load, you can call multiple wire basically, no problem. Okay, okay, हेलो yeah, सर, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, इसमें बायर मेथड में कैसे भी ट्रू का एग्जैक्ट यूज क्या है, मतलब कैसे वर्क करता है? किसका ट्रू मतलब नहीं समझा मैं। कैसे भी ट्रू। कैचेबल इक्वल ट्रू, यस, कैचेबल इक्वल ट्रू क्या होता है, जब भी हम जब सर्च का फंक्शनलिटी करेंगे तो क्या होता है कि जैसे कि आपने कैचेबल इक्वल टू ट्रू किया तो जब भी हम वायर से कोई भी मेथड कॉल करते हैं, ठीक है, तो वो डेटा ले हमारा कैश कैश में जाकर स्टोर कर देता है, मतलब ब्राउजर की कैश में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने आप सर्च किया यस से, आपने टाइप किया यस आई टी, ठीक है, तो एस आई टी पर टाइप कर दिया, लेकिन अब जब भी दोबारा कभी भी आकर एस आई टी टाइप करोगे तो वो आपका वायर मेथड कॉल नहीं होगा, मतलब एपेक्स कॉल नहीं होगा उस टाइम पे, सिर्फ आपका कॉल होगा बेसिकली, जो कैश में डेटा पड़ा हुआ वहीं से उठा के वो दिखा देगा। बट आपने एस आई टी ए लिख दिया, ठीक है, तो आपका जो मेथड है वो वायर दोबारा जाएगा एपेक्स क्लास में कॉल करेगा सर्वर को, और जो एस आई टी ए से रिलेटेड जितने भी डेटा होगा वो सारा लेकर आएगा। अगर आप सिमिलर कीवर्ड को टाइप करोगे तो वो आपको कैसे उठाएगा, तुरंत डेटा दिखा देगा, क्योंकि डेटा आपके पास कैश में पड़ा हुआ है, मतलब क्लाइंट साइड, जैसे हमको भी कोई भी यूआईडी मतलब बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, क्लाइंट के लिए, तो क्लाइंट के जाके कैश में स्टोर हो गया डेटा, तो जब भी वो सेम सिमिलर चीज टाइप करेगा तो उसको वहीं से डेटा ला के दे देगा, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम कैशेबल इक्वल ट्रू यूज करते हैं। बट वायर हमेशा डेटा कैश में ही स्टोर करता है, इसलिए हमें कैशेबल इक्वल टू ट्रू यूज करना पड़ता है। अगर आप कैशेबल इक्वल ट्रू यूज नहीं करोगे तो आपको एरर मिलेगा। लेट मी शो यू दैट एरर, ओके, गिव मी 1 मिनट, सो आई विल शो दैट एरर आल्सो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एरर क्या है। ठीक है, मेरा स्क्रीन आ रहा है राइट? हेलो, हेलो। या मेरा स्क्रीन आ रहा है राइट यहाँ पे? Yes, sir. Yes. ओके, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कैशेबल इक्वल टू हटा देता हूँ, ओके, तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या एरर आता है। इसको डिप्लॉय करो आप, डिप्लॉय हो गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम, रिफ्रेश नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे डेटा अभी दिखा रहा है। हम कैश को भी हटाते हैं, जो कैश में पड़ा हुआ डेटा है। तो अभी भी जा रहा है डेटा, कैसे डेटा आ रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हम जब कैशेबल को ट्रू नहीं यूज करते तो डेटा नहीं आता है, सर और हो आना, सकता है कैश कैसे में स्टोर कर हो गया वो। यस,
क्योंकि मतलब हो सकता है ब्राउजर में वो स्टोर हो चुका है, बट यहाँ पे कैश डेटा दे रहा है। तो मैं एक बार इसको 1 मिनट मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी डेटा हो जाता है उसमें तो स्टोर हो जाता है, और वो डेटा वहीं से उठा के दिखाता है, बट ये मेथड ही कॉल नहीं होता। मतलब अगर आप पैसे को ट्रू नहीं किए हो तो मेथड ही कॉल नहीं होता है बेसिकली। बट यहाँ पे अभी डेटा आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कैश में डेटा चला गया है, तो इसलिए। बट हो सकता है मैं चेक कर लूंगा कि कैचेबल इक्वल ट्रू ना करने पे भी अब वायर कॉल करता है। हो सकता है कि फंक्शनलिटी चेंज हुआ हो, मतलब LWC का उसमें कुछ नया ऐड हो गया कि बिना कैचेबल इक्वल ट्रू के भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं चेक कर लूंगा, कुछ नया अपडेट आया होगा तो मैं देख सर लूंगा। इसमें अकाउंट नेम अगर हम चेंज करें तो सर हो सकता है कि वो नहीं दे। किसमें? जो भी हार्ड कोडेड अकाउंट नेम दिया है, अगर हम दूसरा अकाउंट नेम डालें सर तो एरर आनी हाँ चाहिए कुछ। हाँ, लेकिन बट ठीक है, हम तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार। एरर तो आएगा, को डेटा नहीं मिलेगा, ब्लैंक देगा, लेकिन डेटा हमारा रिफ्रेश नहीं हो रहा ना। तो एक बार हम वो भी कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स डिप्लॉय दिस। तो यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, लेकिन तो वो तो एरर नहीं आएगा, लेकिन एरर आना चाहिए। ऑब्जेक्ट का एरर दिखा रहा है बेसिकली, बट वो ऑब्जेक्ट का एरर। हाँ, अब देखो, हाँ आ रहा है डेटा। देखो एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, एपेक्स मेथड आर नॉट टू बी कैच, मस्ट बी मार्क एज कैच। क्योंकि क्या हुआ था, वो कैच एक्चुअली यहाँ, रुको मैं आपको यहाँ से हाँ, आप देखो यहाँ पे डेटा एरर दिखा रहा है, ठीक है। एरर मेथड में क्या लिखा है, एपेक्स मेथड दैट आर टू बी कैच मस्ट बी मार्क एज और इनेबल्ड कैचेबल इक्वल टू ट्रू। ओके, तो हमें कैचेबल इक्वल टू ट्रू ही का होता है। क्या होता है कि जो भी हम डेटा लेकर आते हैं, ठीक है, वो वायर मेथड क्या करता है, उस डेटा को कैश में डाल देता है, तो आपका डेटा वो कैश में पड़ा रहता है ओके बेसिकली। सर। ओके, तो हमें इसलिए कैचेबल इक्वल टू यूज करना पड़ता है। ओके, Imperative में you don't do a catch. हाँ, इम्परेटिव में हमें जरूरत नहीं पड़ता है बेसिकली। ये जब भी हम इम्परेटिव यूज करेंगे तो इम्परेटिव में हम यहाँ पे कैचेबल इक्वल टू हटा देते हैं। तो क्या करता है उसमें होता है इम्परेटिव, उसको हटा देता है, मतलब वो आपको कैचेबल इक्वल टू यूज नहीं करना पड़ता है। ओके Okay. ओके, देन I hope everyone understand, and if anyone any have any question, okay, so you can ping me also. In if you are not in my group, let me stop the recording. Thanks everyone for joining, and